برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں بہتری آ گئی ہے۔ مرغی کا گوشت 1 روپے سستا ہوا، قیمت 579 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ فارمی انڈوں کی قیمت 244 روپے فی درجن برقرار ہے۔ انڈوں کی بات کریں تو انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی ہو گئی ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے نمائندہ عبدالقادر سے۔ عبدالقادر آگاہ کیجیے گا۔ جو پولٹری مصنوعات کی سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے ہیں اس میں پولٹری مصنوعات میں برائلر کی قیمت میں بھی کمی کی گئی ہے اور انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رکھی گئی ہیں۔ برائلر کی قیمت میں کمی کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر کی سیل جو ہے جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ جو ہے وہ کم ہوا ہے، جس کی باعث آج 6 روپے فی کلو تک کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ 17 روپے کی کمی کی گئی تھی، جبکہ آج تیسرے روز بھی 6 روپے مزید جو ہے وہ کم کر دیے گئے۔ مرغی کا گوشت 585 روپے فی کلو سے کم کر کے 589 روپے فی کلو کر دیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر جو ہے وہ 4 روپے فی کلو تک کم کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 378، جبکہ پرچون بازار میں زندہ برائلر کی قیمت 386 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتیں تاہم جو ہے مستحکم رکھی گئی ہیں، 244 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ انڈوں کی پیٹی 7200 روپے کی کر دی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا شہریوں کو 21 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتیں اب بھی جو ہے وہ عوامی خرید سے باہر ہے، کیونکہ 300-350 روپے میں ملنے والا برائلر جو ہے اب بھی 550 روپے فی کلو کی سطح پر فروخت کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہری جو ہیں وہ ان کی قوت خرید سے باہر ہونے کی وجہ سے برائلر کی خریداری کم کر رہے ہیں، اور برائلر کی قیمتوں میں آج تیسرے روز بھی کمی کی گئی۔ آج 6 روپے کم کر کے 589 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ جو کچھ ہو رہا ہے سب لندن پلان کا حصہ ہے۔ کل سے زمان پارک مضبوطہ کشمیر لگ رہا ہے۔ پولیس نے ہمارے لوگوں پر ایسے حملہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ زمان پارک فتح کرنے آ رہے ہیں۔ عمران خان کا ویڈیو پیغام جاری کر دیا گیا، بولے کہ انتشار سے بچنے کے لیے اشتیاق خان کو انڈر ٹیکنگ دے دی گئی ہے۔ آئین کے مطابق کسی افسر کو سیکیورٹی بانڈ دے دیا جائے تو گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ میرے پاکستانیوں، کل دوپہر سے زمان پاک ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مقبوضہ کشمیر ہے۔ جس طرح کا پولیس نے حملہ کیا ہمارے لوگوں کے اوپر، یہ تو یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ تھوڑے سے لوگوں کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا اور نقصان پہنچایا؟ واٹر کیننز، ٹیئر گیس، شیلنگ یا گھر کے اندر کی، یا بیچارے ملازم تھے، عورتیں تھیں۔ تو اس کا کوئی سمجھ نہیں آئی کہ جب میری بیل 18 تک تھی اور میں نے صرف وہ جس کے اوپر انہوں نے وارنٹ نکالے ہیں، ان کو پتا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ F8 کچہری اسلام آباد میں جا رہا، کیونکہ وہاں 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں اور وہاں وکلا بھی اور جج بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں سیکیورٹی کی وجہ سے، اور ان کو پتا ہے کہ میں نے تو سیکیورٹی کی وجہ سے میں نہیں اپیئر ہوا۔ اب پھر سے تیاری کر رہے ہیں، بھاری کنٹینجنٹ پولیس کی تیار ہو رہی ہے، رینجرز تیار ہو رہے ہیں، پھر جس طرح زمان پاک کو فتح کرنے آنا ہے۔ میں صرف انتشار کو بچانے کے لیے آج میں نے ایک انڈر ٹیکنگ دی۔ اشتیاق خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے شورٹی بانڈ دیا، جا کے کوشش کی DIG کو دینے کے لیے جو مجھے اریسٹ کرنے آ رہا تھا۔ وہ انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ وہ DIG جان کے نہیں ملا۔ اور جو کوڈ آف کرمنل پروسیجر ہے اس کا جو سیکشن 76 ہے، اس کے مطابق اگر یہ شورٹی بانڈ دے دیا جاتا ہے جو اریسٹنگ آفیسر ہے، اس کے بعد وہ اریسٹ نہیں کر سکتا۔ اور میں نے کیا شورٹی بانڈ دیا کہ میں 18 کو جو میں نے پہلے سے بھی کہا ہوا تھا، 18 کو میں عدالت میں پیش ہوں گا۔ اس کے بعد اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے اریسٹ کرنے کا۔ لاہور میں امن و امان کی صورتحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نذیر نقوی کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ عدالتی احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ پولیس اپنے طریقے سے مزید نفری بھی دیگر اضلاع سے بلوانا چاہے تو بلوا سکتی ہے۔ پولیس کو مارنے کے لیے اکسایا جائے تو اس کے خلاف قانون کے تحت ایکشن ہونا چاہیے۔ اجلاس میں پولیس، انتظامیہ، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں امن عامہ کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا یہ معاملہ ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
تیسرے روز لاہور سے 781 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، جبکہ مریم نواز نے پی پی 139 جبکہ حمزہ شہباز کا لاہور کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد، مراد راس اور دیگر نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کی 30 نشستوں پر پی ٹی آئی، نون لیگ سمیت متعدد اہم رہنماؤں نے کاغذات جمع کروا دیے۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پی پی 172 اور 173 سے کاغذات جمع کروائے۔ عمر سرفراز چیمہ نے پی پی 155، اجاز چودھری نے پی پی 166 اور عاطف چودھری نے پی پی 161 سے کاغذات جمع کروائے۔ میاں محمود الرشید حماد اظہر پی پی 171 پی پی 155 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رانا مشہود خواجہ سلمان رفیق بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں میں شامل ہیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز پی پی 149 سے میدان میں اتریں گی۔ حمزہ شہباز 2 حلقوں پی پی 146 اور 147 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا بھی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل میر نے پی پی 161 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ رانا فاروق سعید، سید حسن مرتضی، شہزاد سعید چیمہ، اسلم گل نے بھی اپنے حلقوں میں کاغذات جمع کروا دیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق لاہور کی 30 نشستوں پر اب تک 781 امیدوار کاغذات نامزدگی جمع اور 1920 امیدوار کاغذات نامزدگی حاصل کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی توثیق کے بعد اب امیدوار 16 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ علی بلال عرف ضلع شاہ قتل کیس کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے کیس میں نامزد ملزموں کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ابو بکر طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ علی بلال عرف ضلع شاہ قتل کیس انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج نے 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت کی۔ ملزموں کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے تفتیش کے لیے ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت میں ملزمان کے وکیل رانا انتظار نے دلائل دیے اور جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 5 ملزمان کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان میں راجہ شکیل، جہانزیب، عمر فرید، محسن شاہ اور اشتیاق شامل ہیں۔ ملزموں کے خلاف تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ 5 ملزمان پر علی بلال عرف ضلع شاہ کے قتل کا الزام ہے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کو ریلی اور جلوسوں بارے حکمت عملی کی رپورٹ 15 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالتی حکم پر ایڈیشنل ہوم سیکرٹری پنجاب عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہو سکتا، لہٰذا عدالت پنجاب حکومت کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ بتائیں دفعہ 144 کس موقع پر اور کیوں لگاتے ہیں۔ عدالت شہریوں اور سیاسی جماعتوں کے بنیادی حقوق کی ضامن ہے۔ درخواست گزار کا اعتراض ہے کہ جب بھی ریلی نکالنی ہوتی ہے یہ دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں۔ عدالت نے درخواست گزار حماد اظہر کو پیش ہونے کا حکم دیا اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کو ریلی اور جلسوں بارے حکمت عملی کی رپورٹ 15 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اگر 2018 کی حکومت مسلح نہ ہوتی تو ملک بہت آگے نکل چکا ہوتا۔ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر لی ہیں، معاملات معمولی تاخیر کا شکار ہے۔ نون لیگ بھی الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیں۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں ہیلتھ سیکیورٹی پر بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد۔ وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ ملکی و غیر ملکی ماہرین، اساتذہ اور طلباء نے بھی کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم پیداوار اور ریسرچ کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2018 کی حکومت مسلط نہ ہوتی تو ملک بہت آگے نکل چکا ہوتا۔ اگر 2018 کی تبدیلی نہ آتی اور تسلسل رہتا پالیسیز میں، اور اگر وہ 30-40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آ جاتی تو آج پاکستان کا شمار دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا۔
احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ IMF کی تمام شرائط پوری کر لی ہیں، معاملات معمولی تاخیر کا شکار ہیں۔ جمہوریت کا لیکچر دینے والا عمران خان عدالتوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ نون لیگ بھی الیکشن کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی بیماریوں، فوڈ سیفٹی و فوڈ سیکیورٹی، میل نیوٹریشن سمیت دیگر موضوعات پر گفتگو کی۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبین حیدر، لاہور نیوز۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں PTI رہنما حامد زمان کا نام ECL سے نکالنے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض ختم کر دیا ہے۔ جسٹس محمد وحید خان نے PTI رہنما حامد زمان کی درخواست پر بطور اعتراض سماعت کی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے عدنان طارق ایڈوکیٹ نے دلائل پیش کیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ حامد زمان کا نام سیاسی طور پر ECL میں شامل کیا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کاروباری معاملات کے سلسلے میں بیرون ملک جانا ہوتا ہے۔ ممنوع فنڈنگ کیس کو جواز بنا کر نام ECL میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب عدالت سے رجوع کیا تو درخواست پر سماعت سے متعلق نام ECL میں شامل کرنے کے آرڈر کی مصدقہ کاپی نہ لگانے کا اعتراض ہے۔ عدالت درخواست گزار کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست پر اعتراض ختم کرتے ہوئے قابل سماعت قرار دے دی ہے۔ کار ساز کمپنیوں کی اجارہ داری برقرار ہے۔ ہونڈا کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا ہے۔ مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ مہنگائی کی کار تیز رفتار، ہونڈا کمپنی نے گاڑیوں کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھا دیں۔ کاروں کے مختلف ماڈل 2 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک مہنگے ہو گئے۔ ہونڈا سوک RS 1500 CTV کی قیمت میں 10 لاکھ روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 1,01,99,000 روپے ہو گئی۔ ہونڈا سوک 1500 اوریل کی قیمت میں 8,50,000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 89,49,000 روپے مقرر۔ ہونڈا HRV کے ماڈل VTI کی قیمت 7 لاکھ روپے مزید بڑھ گئی۔ نئی قیمت 78,99,000 روپے ہو گئی۔ ہونڈا BRV کی قیمت میں 5,80,000 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ نئی قیمت 65,29,000 روپے مقرر۔ ہونڈا کمپنی کی جانب سے دیگر ماڈلز میں بھی ہوشربا اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی نئی قیمتوں کا فوری اطلاع کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ مہنگائی کے ہر شعبے پر بار جتنی بھی رقم ہو کم لگنے لگتی ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی آئندہ مالی سال کے لیے زیادہ بجٹ کی ڈیمانڈ کر دی ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے 1,72 ارب روپے کے بجٹ کی ڈیمانڈ۔ بجٹ لا اینڈ آرڈر، پولیس کی تنخواہوں، پینشن، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگیوں پر خرچ ہوگا۔ بجٹ کا زیادہ حصہ تو صرف تنخواہوں اور پیٹرول پر ہی صرف ہوگا۔ نئے بجٹ میں صرف پیٹرول کی مد میں 10 ارب روپے مانگے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 100% زائد ہیں۔ بجلی، گیس اور پانی کے بلز کی ادائیگیوں کے لیے بھی اضافی فنڈز طلب۔ پولیس ذرائع کے مطابق رواں مالی سال میں 1,46 ارب کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ پولیس حکام رواں ماہ ہی غیر استعمال شدہ فنڈز سرنڈر کرتے ہوئے مزید ڈیمانڈ بھجوائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس کی جانب سے تخمینہ بجٹ حکومت کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ بجٹ میں کتنا اضافہ کیا جائے گا، فیصلہ حکومت کرے گی۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ 15 مارچ دنیا بھر میں صارف کے حقوق اور تحفظ کا عالمی دن ہے۔ 2023 میں توانائی سمیت دیگر وسائل کے ذریعے صارف کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ لاعلمی کی وجہ سے صارف پاکستان میں کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، جانتے ہیں عبدالقادر کی اس رپورٹ میں۔ عالمی یوم حقوق صارف کا مقصد اشیاء کی خرید و فروخت کا انتخاب، صارف کا اطمینان، حفاظت اور اسے فراہم کردہ معلومات کا درست ہونا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی صارفین کے حقوق کی آگاہی مہم چلائی جاتی ہے۔ صارف کو اس کے حقوق کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بازاروں کا رخ کرنے والوں کا روزانہ استحصال ہوتا ہے۔ ملک میں صارف عدالتیں بھی ہیں، لیکن لوگوں کو اس بارے میں آگاہی ہی نہیں۔ لا علمی کی وجہ سے صارف نقصان اٹھاتا ہے، جبکہ منافع خور مال کماتا ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال میں صارفین کچھ زیادہ ہی بے بس ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں مہنگائی جان چھوڑے تو اپنے حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ پاکستان کو مہنگائی کا پتہ ہے، مہنگائی نکلنے دے گی کسی سائڈ پہ تو کسی کو پتہ نہیں۔ ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو یہ حقوق ہوتا ہے کیا، صارف حقوق۔ صارف حقوق کا کسی کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ابھی تک کسی کو ابھی سنا نہیں کسی کے سے یہ صارف حقوق ہوتے کیا ہے۔ صرف یہی پتا ہے مہنگائی کے ساتھ اب غریب عوام مر رہی ہے، پیس رہی ہے، اور کچھ نہیں، لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دوسری جانب صارف تنظیموں کا کہنا ہے کہ صارفین اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائیں اور متحد ہو کر مہنگی اشیاء کی خریداری کو کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں تو خود ساختہ مہنگائی سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महंगाई ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। सरकारी रेट इसमें एक सब्ज़ी महंगी हो गई, जबकि प्याज 140, टमाटर 80, लहसुन 440 और अदरक की बात करें तो 700 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगा है। मार्केट में सेब 400 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 300 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद आज के क्या भाव ताव हैं बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज भी जो सरकारी महकमा जारी किया गया उस पर अमल दरामद जो है वो ना तो शहर की सब्जी मंडियों में हो रहा है और ना ही शहर के ओपन मार्केटों में कहीं होता दिखाई दे रहा है। आज जो सब्जी मंडी की इंतजामिया की जानिब से सरकारी रैली जारी की गई है सब्जियों की, इसमें प्याज 129 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का यही प्याज जो 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 60 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में टमाटर 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन 340 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 340 के 100 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों से 440 से 450 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 620 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन 700 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे फार्मी 40 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। तमाम मार्केट में जो टींडे हैं वो 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू 47 के बरक 60 रुपये और मेथी 47 के बरक 70 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। खीरा 68 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन खीरे की फरोख्त जो है 80 रुपये फी किलो तक की जा रही। करेले की सरकारी कीमत जो है वो 155 रुपये आज मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 170 रुपये से 180 रुपये फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। फूल गोभी 60 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट में, लेकिन 180 रुपये फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह भिंडी 190 के बरक 240 और शिमला मिर्च 80 के बरक 100 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की जो सरकारी रैली जारी की गई है उसमें फल जो है अब वो महंगे होने के बावजूद मार्केट में मजीद महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब काला कोल्हू 305 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 400 रुपये फी किलो तक सेब की फरोख्त की जा रही है। केला दर्जा अव्वल 165 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में केला दर्जा अव्वल 300 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। पपीता 220 के बरक 280 रुपये, इसी तरह खजूरी रानी 470 के बरक 570 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अनार बताना 650 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में अनार बताना जो है 850 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी महकमाओं के बरक महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी रेलियों पर अमल दरामद न होने की वजह से हर दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी के नर्स जो है वो शहरियों से वसूल कर रहा है और इंतजामिया की जानिब से सिर्फ सरकारी रेलियां जारी की जाती हैं, जबकि इन पर अमल दरामद के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अब्दुल कादिर बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे वर्कशॉप से लोहा, कॉपर और दीगर मटीरियल चोरी होने लगा है। रेलवे के ही 2 मुलाजिम चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात न होने की वजह से रेलवे वर्कशॉप से चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। रेलवे वर्कशॉप से मटेरियल चोरी की वारदातें बढ़ गईं। रेलवे के मुलाजिम ही चोर निकले। मुलजिम नवीद और अब्दुल्ला वर्कशॉप पर खड़ी बोगियों से लाखों रुपए मालियत की कॉपर वायर और दीगर सामान चोरी करके ले जा रहे थे कि पकड़े गए। जराये के मुताबिक रेलवे पुलिस की नफरी कम होने की वजह से वर्कशॉप की सिक्योरिटी बेहतर नहीं है। चोरी की वारदातों में हर गुजरते रोज के साथ इजाफा हो रहा है। रेलवे की सैकड़ों एकड़ पर कायम वर्कशॉप के लिए मंजूर शुदा पुलिस नफरी भी दस्तयाब नहीं। वर्कशॉप डिवीजन के लिए रेलवे पुलिस की मंजूर शुदा नफरी 570 है, ताहम 315 एहलकार ही दस्तयाब होते हैं। मटीरियल चोरी करने वाले दोनों रेलवे मुलाजमीन नवीद और अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स का अजरा न हो सका। बुजदार और परवेज इलाही दौर के मंसूबे तकमील के लिए फंड्स के मुंतजर हैं। शहबाज दौर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी फंड्स न होने के सबब मुकम्मल नहीं हो सके। तफसीलात देखिए रिपोर्ट में। शहर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों की तकमील का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत ने LDA की सदा पर फंड्स का इजरा न किया। शाहकाम फ्लाईओवर से मुल्हिका डिफेंस रोड की तोसी का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का काम भी इल्तवा का शिकार है। शेरावाला फ्लाईओवर के साथ सलकुलर रोड पर रोड लाइट्स लगाने का काम अधूरा है। सगिया मंसूबा पैकेज 3 नामुकम्मल। समनाबाद अंडरपास पर भी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। शाहदरा मल्टी लेवल के फंड्स होने के बावजूद मंसूबे पर तामीरात के लिए अराजी क्लियर ना हो सकी। फंड्स ना होने के बाइस तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का काम भी मुकम्मल नहीं। LDA ने पंजाब हुकूमत को दोबारा फंड्स के इजरा के लिए इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको अपडेट करते चलें कि चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का चैलेंज रेंजर्स और पुलिस जमान पार्क में ही मौजूद है। PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान वक्फे से झड़पें भी जारी हैं। पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की जा रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे मोहम्मद अली से।
अली बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ आप? सेलिंग शुरू है और पंजाब रेंजर ने जो जमानपुर की मेन सड़क है उस पर कंट्रोल संभाल लिया और जो कारकुन है बहुत बड़ी तादाद में वो भागे हैं धर्मपुर की तरफ। और अभी सूरत हाल ये है कि रेंजर ने एक हैवी ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में उन्होंने जमानपुर की जो मेन रोड से गाड़ी कम कर चली, पथराव शुरू हो गया इस साइड में। अभी बहुत बुरी सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पे सेफ रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, लोग बड़ी मुश्किल से भागे हैं। यहाँ पे रेंजर की पूरी एक यूनिट है जिसने एक हैवी ऑपरेशन शुरू किया है और जिसके नतीजे में कारकुन भी काफी जख्मी लगे हैं, लेकिन वो लोग जख्मी हालत में भी भागे हैं। दूसरी जाने पुलिस जोन से बैक के फ्रंट पे अब रेंजर आ गया। रेंजर जोन से वो एक तो पथराव दोनों साइडों से हो रहा है, नहर के अतराफ में भी और दूसरी साइड से भी। ठीक है अली, आप अपना भी बहुत ख्याल कीजिए। ये भी बताइएगा कि शेलिंग इस वक्त कहाँ कहाँ हो रही है जमान पार्क के अलावा? जी जमान पार्क में इस वक्त शेलिंग और भर्ती जो सिस्टम जो है वो शेलिंग भी बहुत ज्यादा है। और एक बार रेंजर की जानिब से जो है वो के दोनों सड़कों पे रेंजर ने कोशिश की है कंट्रोल संभालने की, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जमान पार्क की मेन सड़क पर कंट्रोल लिया गया, बाकी पूरा एरिया जो है वो अभी भी कारकुनों की जो वो उनका एहसार मौजूद है। अभी रेंजर की जो यूनिट है उसकी तरफ से अभी एक उन्होंने टंकी को आग लगाई थी माल रोड की जो सड़क से आने वाला जो रास्ता है, लेकिन अब जो उनसे सूरत बदली के जो है। मोहम्मद अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स का अजरा न हो सका। बुजदार और परवेज इलाही दौर के मंसूबे तकमील के लिए फंड्स के मुंतजर हैं। शहबाज दौर के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी फंड्स न होने के सबब मुकम्मल नहीं हो सके। तफसीलात देखिए सपोर्ट में। शहर में जारी और नए तरक्याती मंसूबों की तकमील का मामला। निगरान पंजाब हुकूमत ने LDA की सदा पर फंड्स का इजरा न किया। शाहकाम फ्लाईओवर से मुल्हिका डिफेंस रोड की तोसी का मंसूबा मुकम्मल न हो सका। गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का काम भी इल्तवा का शिकार है। शेरावाला फ्लाईओवर के साथ सलकुलर रोड पर रोड लाइट्स लगाने का काम अधूरा है। सगिया मंसूबा पैकेज 3 नामुकम्मल। समनाबाद अंडरपास पर भी तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है। शाहदरा मल्टी लेवल के फंड्स होने के बावजूद मंसूबे पर तामीरात के लिए अराजी क्लियर ना हो सकी। फंड्स ना होने के बाइस तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का काम भी मुकम्मल नहीं। LDA ने पंजाब हुकूमत को दोबारा फंड्स के इजरा के लिए इस्तदा कर दी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको अपडेट करते चलें कि चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी का चैलेंज रेंजर्स और पुलिस जमान पार्क में ही मौजूद है। PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान वक्फे से झड़पें भी जारी हैं। पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की जा रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे मोहम्मद अली से। अली बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ आप? शेलिंग शुरू है और पंजाब रेंजर ने जो जमानपुर की मेन सड़क है उस पर कंट्रोल संभाल लिया और जो कारकुन है बहुत बड़ी तादाद में वो भागे हैं धर्मपुर की तरफ। और अभी सूरत हाल ये है कि रेंजर ने एक हैवी ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में उन्होंने जमानपुर की जो मेन रोड से गाड़ी कम कर चली, पथराव शुरू हो गया इस साइड में। अभी बहुत बुरी सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पे सेफ रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, लोग बड़ी मुश्किल से भागे हैं। यहाँ पे रेंजर की पूरी एक यूनिट है जिसने एक हैवी ऑपरेशन शुरू किया है और जिसके नतीजे में कारकुन भी काफी जख्मी लगे हैं, लेकिन वो लोग जख्मी हालत में भी भागे हैं। दूसरी जाने पुलिस जोन से बैक के फ्रंट पे अब रेंजर आ गया। रेंजर जोन से वो एक तो पथराव दोनों साइडों से हो रहा है, नहर के अतराफ में भी और दूसरी साइड से भी। ठीक है अली, आप अपना भी बहुत ख्याल कीजिए। ये भी बताइएगा कि शेलिंग इस वक्त कहाँ कहाँ हो रही है जमान पार्क के अलावा? जी जमान पार्क में इस वक्त शेलिंग और भर्ती जो सिस्टम जो है वो शेलिंग भी बहुत ज्यादा है। और एक बार रेंजर की जानिब से जो है वो के दोनों सड़कों पे रेंजर ने कोशिश की है कंट्रोल संभालने की, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ जमान पार्क की मेन सड़क पर कंट्रोल लिया गया, बाकी पूरा एरिया जो है वो अभी भी कारकुनों की जो वो उनका एहसार मौजूद है। अभी रेंजर की जो यूनिट है उसकी तरफ से अभी एक उन्होंने टंकी को आग लगाई थी माल रोड की जो सड़क से आने वाला जो रास्ता है, लेकिन अब जो उनसे सूरत बदली के जो है। मोहम्मद अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA का गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वापडा टाउन मेन बुलवार्ड पर गैर कानूनी लैंड कन्वर्जन पर इमारत को जुज़वी तौर पर मुस्मार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंतखाबात के लिए अदालती अफसरान की नामजदगियों की इस्तदा कर दी है। सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में 30 अप्रैल को होने वाले आम इंतखाबात अदालती अफसरान के जरिए इनेकाद करवाने का मामला मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि इंतखाबात हमेशा अदालती अफसरान पर मुश्तमिल DROs और ROs के जरिए ही करवाए जाते हैं। अदालती अफसरान की नामजदगियों के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने पर तहरीक इंसाफ हैरत व तशवीश का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट 1 मार्च 2023 को आज खुद नोटिस के फैसले में इस हवाले से हिदायत दे चुकी है। वफाक और निगरान हुकूमतें तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान को निशान इंतकाम बनाने के लिए हर हद से गुजर रहे हैं। इंतखाबात से दूर रखने के लिए तहरीक इंसाफ के कायदीन को जाली और झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। अदालती अफसरान के बजाय अगर हुकूमत के मातहत अफसरान को इंतखाबात का इनेकाद सौंपा गया तो इसकी शफाफियत के इम्कानात खाक में मिल जाएंगे और अवाम भी कबूल नहीं करेंगे। खत में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के फैसले पर नजरसानी की जाए और इंतखाबात के इनेकाद के लिए मातहत अदलिया से अफसरान की नामजदगियों के हवाले से रजिस्ट्रार को मुनासिब हिदायत जारी की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा फारूक हबीब को एंटी करप्शन में तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि अभी फारूक हबीब की गिरफ्तारी का कोई फैसला नहीं हुआ। तफसीला देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने फारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने फिलहाल फारूक हबीब को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी करवा दी और कहा कि फारूक हबीब पेश हों, तमाम इल्जामात से मुतालिक तफसीलात फराहम करेंगे। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर से इस्तफसार किया कि फारूक हबीब पर क्या इल्जामात हैं। नोटिस में तो कहीं नहीं लिखा। एंटी करप्शन के ऑफिसर ने बताया कि फारूक हबीब के खिलाफ रोड के ठेकों में गपले के इल्जामात हैं। इसी बारे तहकीकात कर रहे हैं और अभी फारूक हबीब की गिरफ्तारी का कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत ने एंटी करप्शन के बयान के बाद फारूक हबीब को इंक्वायरी ज्वाइन करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर यह भी है कि निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा किया गया है। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी और दीगर एहलकारों की आदत की है। मोहसिन नकवी का यह कहना था कि ज़ख्मी DIG ऑपरेशन SHOs और एहलकारों के हौसले बुलंद हैं। आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विस अस्पताल का दौरा किया गया है। इसी पर बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, इस दौरे के हवाले से आगाह कीजिए। आज बिल्कुल सुबह सवेरे निगरान वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी सर्विस अस्पताल पहुंचे और आज जो ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में जो पथराव हुआ उन पर उसके नतीजे में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की उन्होंने तीमारदारी की है। इस्लामाबाद पुलिस के DIG जो हैं शहजाद नदीम बुखारी और दीगर मुख्तलिफ इलाकों के SHOs जो 3 जख्मी हुए उन समेत जो कांस्टेबल साहबान थे उन सब की तीमारदारी की। उनका कहना था कि पुलिस के इन कारकुनों पुलिस के इन एहलकारों ने जो है वो कानून की अमलदारी के लिए अपना किरदार अदा किया और सियासी जमात के कारकुनों के पथराव से ये जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस हवाले से कानून जो है वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। तोशा खाना से तहाइफ वसूल करने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीलात फराहमी दरख्वास्त की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। आइंदा समात पर सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। तोशा खाना से तहाइफ वसूली का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2002 से अब तक का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है, जबकि दरखास्त गुजार के मुताबिक पेश किया गया रिकॉर्ड नामुकम्मल है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दाखिला की कमेटी ने फैसला किया है कि तोहफे देने वाले सोर्स को खुफिया रखना है, लिहाजा सरकारी वकील वजारत दाखिला की कमेटी के फैसले की मुतल्लिका दस्तावेजात अदालत पेश करें।
जस्टिस आसिम हफीज ने तहरीरी हुक्म में मजीद कहा कि अदालत देखेगी कि क्या तोहफे देने वाले जराए को खुफिया रखना है या नहीं। सेक्शन ऑफिसर ने बताया कि 1990 से 2001 का रिकॉर्ड जुज़वी तौर पर मौजूद है, ताहम तस्दीक नहीं की जा सकती। अदालत ने हुक्म दिया कि 21 मार्च को रिकॉर्ड अदालत के रूबरू पेश किया जाए। मुतल्लिका रिकॉर्ड की जांच ओपन कोर्ट में की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने आइंदा समात पर वकला को बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए तलब भी कर लिया है। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज ने गुज़श्ता समात का 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया, जिस पर कहा गया है कि FIR प्रोसिक्यूटर और मुल्ज़मान के वकील ने अदालती दायर इख्तियार से एतराज़ उठाया। FIA के वकील ने अदालती दायर इख्तियार से मुतालिक मुल्ज़मान के वकील के दलाइल की तायद की है। तहरीरी हुक्म में मज़ीद ये कहा गया है कि अदालत ने खुद से दायर इख्तियार से मुतालिक नुक्ता तय किया है। तहरीरी हुक्म में वज़ा किया गया है कि अदालत को इस ट्रायल पर समात का मुकम्मल इख्तियार है। मुल्ज़मान के वकील आइंदा समात पर बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल दें। इफ़ीड्रेन कोयटा केस है। लाहौर हाई कोर्ट में केस पर समात ना हो सकी। मुस्लिम नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ रैली में इतना बड़ा बब्बर शेर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ ने लंदन से आकर गिरफ्तारी दे दी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एफीड्रीन कोटा केस। लाहौर हाईकोर्ट में केस पर समात न हो सकी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने एफीड्रीन केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाईकोर्ट के अहाता में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा कि पिंडी का एक शख्स कहता था कि जेल मेरा ससुराल है, जेल गया तो रोने लग गया। लाहौर की रैली नाकाम थी, ये जलसा तो क्या जलसी भी नहीं कर सकते। पिंडी का पेटू कहता होता है कि हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है। दूसरे दिन रोना शुरू कर दिया ससुराल में। रैली अगर आप लाहौर में देखें तो इस रैली को अगर गैर जानबदार आंखों ने जब देखा है तो उन्होंने ये फैसला दिया है कि ये जलसा तो दूर की बात है, इसको जलसी भी आप करार नहीं दे सकते। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मजीद कहा कि गुज़श्ता रोज रैली में इतना बड़ा बब्बर शेर गाड़ी से बाहर नहीं निकला। नवाज शरीफ ने तो लंदन से आकर गिरफ्तारी दी थी, मुझे एक झूठे केस में मुलव्वस किया गया। स्कूलों में नई दाखिला मुहिम शुरू हो गई, मगर बच्चों के लिए मुफ्त किताबों की कमी का सिलसिला हल ना हो सका। तुलबा को पुरानी किताबें ही दी जा रही हैं। तफसीलात देखिए आतिफ परवेज की रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम हज़ारों बच्चों को पुरानी किताबों पर ही गुजारा करना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नई दाखिला मुहिम तो शुरू कर दी गई, मगर किताबें मुकम्मल फराहम नहीं की गई। स्कूल सरबराहान भी परेशान। एजुकेशन अथॉरिटीज का प्रमोट होने वाले बच्चों से पुरानी किताबें लेने का हुक्म। ज़राए महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि फंड्स की किल्लत के बायस मुफ्त दरसी खुद कम प्रिंट की गई। बच्चों को सिर्फ पुरानी किताबें वापस करने पर ही नई किताबें मिलेंगी। स्कूल सरबराहान की हिकमत अमली के मुताबिक बच्चों से पुरानी किताबें 31 मार्च को रिजल्ट वाले दिन वसूल की जाएंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाने के लिए इक़दामात। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। तालिबात को मुनशियात के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से आगाही दी गई है। रिपोर्ट देखिए। मुनशियात का इस्तेमाल मौत का जाल। लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी के शोबा जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम नशे के इस्तेमाल को कम करने के लिए हिकमत अमली और आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। कंसल्टेंट ड्रग एडवाइजरी हब सैयद जुल्फिकार हुसैन का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि नशे की आदत आग की तरह होती है, जिसमें शिद्दत बढ़ती है। मुनशियात का इस्तेमाल इंसान को बर्बाद कर देता है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 1 करोड़ 10 लाख का अदालत में परफॉर्मा जमा करवाता है, कहता जी कोई बच्चा सिगरेट नहीं पीता, कोई बच्चा नशा नहीं करता। कॉलेज वाले कहते हैं कोई बच्चा नशा नहीं करता। तो मैं कहता हूँ कि ये जो 1 खरब 60 अरब रुपए का सालाना टैक्स गवर्नमेंट शिफ्टों से लेती है, वो कहाँ से जाता है? सड़कों पे जो बैठे हैं वो कहाँ से आए? जो घरों के अंदर 5-6 लाख है वो कहाँ से आए? अब कुछ अल्लाह का शुक्र है, कोई बेहतरी हुई है चीजें। डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज डॉक्टर अफजल का कहना था कि नशे की लत लगने की बड़ी वजह स्मोकिंग है। मुकर्रिरीन ने आगाही सेशन में तालिबात को न सिर्फ मुनशियात बल्कि स्मोकिंग से भी दूर रहने की तलकीन की। महकमा इतलात और सकाफत पंजाब के ज़रिए तमाम पंजाब सकाफत तिहाड़ अलहमरा कौंसल में मेला सजा रहा। लोक गीतों ने हाजरीन को शहर में जकड़ रखा। तकरीब में निगरान सूबाई वज़ीर इतलात और सकाफत आमिर मीर ने खुसूसी शिरकत की है।
अवैस महमूद की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पंजाब सकाफत दिहाड़ का एहतमाम किया गया। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत आमिर मीर ने खुसूसी शिरकत की। आरिफ लोहार ने जुगनी पेश की तो डोल की थाप पर मंचलों ने खूब भंगड़ा डाला। फजल जट ने गीत छल्ला सुनाया, जबकि साईं ज़हूर ने भी खूब रंग जमाया। तकरीब में पंजाब का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। पिलाक के शुरका का कहना था कि पंजाबी सकाफत को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएंगे। कौमों की तरक्की मादरी जुबान की तरक्की से ही मुमकिन है। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ बढ़ोतरी मिलेगी। ये दिन मनाने का मकसद ये है कि हम पंजाब की सकाफत के खूबसूरत पहलुओं को उजागर करें और दुनिया को अपनी नई नस्ल को मुतारिफ कराएं इससे और इस पे फ़ख्र का एक इजहार कर सकें। आउटडोर सरगर्मियों में खाने पीने, कपड़ों और जूतों के स्टॉल्स भी लगाए गए जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ 32 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए, जबकि लाहौर में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए हैं। बिलाल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़। लाहौर में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके हैं। फैसलाबाद में 3 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि पोलियो की रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, वालिदैन ताउन करें। 32 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि लाहौर में ये हदफ 4 लाख बच्चों को पिला के पूरा किया गया। मेरी आप लोगों के चैनल से ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो उनसे 5 साल से छोटे बच्चे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएं। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम खिजर अफजाल का ये कहना है कि हर बच्चे को कतरे पिलाना तरजीह है। मुतहरिक आबादियों की वजह से पंजाब में वायरस फैल सकता है, जिसकी रोकथाम के लिए मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि ज़मान पार्क में कुशीदा सूरत हाल देखने को मिल रही है। मॉल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और गिरदोनवाह में तमाम तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सेक्रेटरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन को आगाह भी कर दिया है। अहम खबर यह है कि ज़मान पार्क में हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं। मॉल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और गिरदोनवाह में तलीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सेक्रेटरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन को आगाह भी कर दिया है। आपको इस अहम खबर के हवाले से अपडेट करें कि माल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और गिरदुनवाह में तालीमी इदारे जो है वो बंद करवा दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सेक्रेटरी स्कूल, हायर एजुकेशन को आगाह भी कर दिया है, जबकि ज़मान पार्क में हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। माल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और गिरदुनवाह में भी हालात जो है वो ख़राब दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर लाहौर ने इसी पर मबनी जो है वो तालीमी इदारों को बंद करवा दिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने सेक्रेटरी स्कूल्स और हायर एजुकेशन को आगाह कर दिया है इस हवाले से, जबकि ज़मान पार्क में हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। माल रोड, धर्मपुरा, गढ़ी शाह और गिरदोनवाह में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ आपको बताएं कि शहर का दर्जा हरारत धीरे धीरे बढ़ने लगा है। गर्मी में भी इजाफा होने लगा है, फ़ज़ाए आलूदगी में कमी नहीं हुई। सामिया सईद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए मौसम के हवाले से। सूरज चमकने लगा और हर गुजरते रोज के साथ गर्मी बढ़ने लगी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 64% है। फिजाई आलूदगी में भी कमी नहीं हो रही। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 AQI 109, फेज 2 एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 रिकॉर्ड। कोट लखपत का AQI 184, कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पर पहुंच गया। दूसरी जाने मौसम का हाल बताने वालों ने अच्छी खबर सुनाई है। आइंदा 2 रोज में बादल बरस सकते हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़।